تو ہم ایک کال ہولڈ پہ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میرا نام پیر خان محمد انور خان ہے، اچھرا لاہور سے بول رہا ہوں سر۔ جی جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر۔ آپ ٹھیک ہے؟ گھر خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے سر آپ کی جو پاوریں دی ہوئی ہیں سر، اس کے ساتھ ہم تو سر بیتاج بادشاہ بن گئے جی۔ بالکل بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائے، بہت سی طاقتیں اور عطا فرمائے، اور باقی سب ٹھیک ہے؟ آصف اور ہاں جی، صوفی نذیر صاحب پیر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں سر، انہوں نے بھی 1 to 4 کیا ہوا ہے، ابھی مزید ابھی پاور لینا چاہتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، بالکل انشاءاللہ۔ صوفی نذیر صاحب؟ جی سر، صوفی نذیر صاحب وابڈا کے آفیسر ہیں سر، انہوں نے 1 to 4 کیا تھا میرے ساتھ ہی۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ تو بہت اچھا، اللہ آپ ان کو بھی اور آپ کو سب کو عطا فرمائے، بہت سی طاقتیں عطا فرمائے۔ آج میرا پروگرام ہے نیگیٹیوٹی اور اس چیزوں پہ، منفی اثرات پہ۔ تو آپ کوئی تو قبلہ منفی اثرات جو ہے، سب سے پہلے تو جی اپنا ہمارا ذہن جو ہے، ہم تقریباً 99% لوگ ایک ہی بلا میں مبتلا ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہمیں جنات چمڑ گئے، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، تو بالکل گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام کرتے نہیں ہیں۔ واقعی آپ کے پاس تو بہت سے ایسے لوگ آتے ہوں گے، کیونکہ آپ سے تو روزانہ بہت لوگ آتے ہیں سر میرے پاس۔ تو جب سے آپ نے سمدہ ہیلنگ پاور مجھے دی ہے سر، تو روزانہ کم سے کم جی 100 سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور سمدہ ہیلنگ انرجی پاور سے سر ابھی تک اگر میں نے برین کی کوئی 9-10 آپریشن کیے ہیں، رسولیوں کی آپریشن کی، اور بہت کامیاب ہوا ماشاءاللہ۔ برین ٹیومر غائب ہو گیا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سامنے گھر کے سامنے، یہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں گھر میں، یہاں پر ایک لڑکی تھی، بے ہوش تھی، اس کو ہاسپٹل والوں نے 5 مہینے بعد کہہ دیا کہ جی اب یہ لے جائیں، یہ باڈی ہے، بس آپ اس کے لیے دعا کریں۔ تو میں اور صوفی نذیر صاحب ان کے گھر میں گئے، سمدہ الرجی کو جب ہم نے ڈرا کیا، اس کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ کا شکر ہے لڑکی میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہے، اور اس کا برین کا پھر ہم نے وہ فالج پہ، دماغ پہ اس کے، تو جب برین کا ہم نے علاج کیا اس کا، اللہ کا شکر ہے لاکھ کہ ابھی میرے پاس خود چل کے آ رہی ہے سر وہ بچی۔ بہت اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی بات ہے جی سر۔ اور سر دوسری یہ ہے کہ یہ جو منفی سوچ ہے انسان کی، جب تک یہ میرے اپنے پاور کے اس کے اندازے کے مطابق جو پاور اللہ تعالیٰ نے شفائی طاقتیں آپ کو عطا کی ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب آپ کو سوچ عطا کی ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ہر بندے کے پاس یہ اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے، اور آپ جیسا نا جی ہر بندہ ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا جو مشن ہے، آپ کہتے ہو پاکستان میں ہر بندہ روحانی ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ صحیح، بالکل بالکل۔ آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے منفی اثرات بھی ختم ہو گئے، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ بہت پرسکون ماحول میں چلا گیا۔ بلکہ میرے گھر میں جب اپنی گدی سے رات کو اٹھتا تھا تو میرا یہ حال ہوتا تھا سر کہ میرے جوڑ کام نہیں کرتے تھے، اور دماغ میرا ایسے ہو جاتا تھا ڈٹ بالکل، تو میں ہر کسی سے نا جی لڑائی کرنے کی، اور کئی دفعہ میرے جو مہمان آتے تھے ان سے بھی بدتمیزی ہو جاتی تھی۔ اب تو یہ ہے سر کہ مجھے نا جی بہت شفقت سے، محبت سے ان سے پیش آتا ہوں، اور ان کی خدمت بھی کرتا ہوں، بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں۔ بہت اچھا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ ہے کہ سر آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ ہر بندے کو روحانی ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اللہ کا ولی بنا رہے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاکستان کے تمام ہر گھر میں ایک ولی ہونا چاہیے سر۔ یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور سب کچھ جو بھی ہے محمد انور صاحب، پھر محمد انور صاحب بات یہ ہے کہ اللہ کرتے ہیں سارا کچھ جو بھی ہے۔ میں کوشش، ہمارا وسیلہ ہے نا حضرت۔ جی جی، میں کوشش کرتا ہوں، اور بس آپ ہمارے وسیلہ ہیں، اور سر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شفائی طاقتیں عطا کی ہے سر، بالکل میں اس کو، بلکہ 100% تو تھوڑا ہے، میں تو جو زندگی میری 53-54 سال کی عمر ہے، میں اس سے بھی زیادہ ایسی کوئی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی اپنی زندگی میں سر۔ میں نے اپنی زندگی میں جنات کی پڑھائیاں کی ہیں، موکلات کی پڑھائیاں کی ہیں، حمزات کی پڑھائیاں کی ہیں، پر یہ ہے کہ جو پاور آپ نے ہمارے جسم میں ڈالی ہے، ہم آپ کا جی بہت زیادہ لاکھ آپ کا بھی شکر گزار ہے، اور اس رب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں یہ اللہ نے آپ جیسا ہمیں پاورفل ایک ڈاکٹر روحانی ملا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مثبت طاقت عطا فرمائے۔ سمدہ ایک بہت پازیٹیو طاقت ہے، بہت
पॉजिटिव पावर है, हमारे सोच से भी बढ़ के है सर ये, और रियली इंसान को बहुत मुस्बत बनाते हैं। तो अगर दूसरा ये कि इस इलाके में अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी जो सख्त किस्म के बीमार लोग आते थे, कई लोगों के घरों में जाके मैंने उनको दम किया है, जिसको राशा बीमारी कहते हैं, सारा वजूद कांपता होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने 2-3 लेडीज को किया, सिर्फ 3 दफा मुझे जाना पड़ा 10-10 मिनट के लिए। तो वो मेरे पास ना लेडीज भी आ रही है, मर्द भी आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस बीमारी से निजात दे दी है। जी, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। ये जो कई लोग इस तरह की ना मनफी सोच रख लेते हैं कि खान बाबा ने ना हमारे ऊपर जादू किया, हम ठीक हो गए, तो सर मुझे ना फिर रोना आ जाता है। यानी कि पहले तो मैं रोता नहीं था, पहले उनको एक चपेट लगा देता था कि आप कैसी बात करते हो, अब मुझे रोना आ जाता है कि अल्लाह मैं इनको कैसे समझाऊं कि मैंने तेरी शफाई ताकतें इस्तेमाल की, तेरी कुरान से मदद मांगा है। तो कई लोग ऐसे भी कह जाते हैं सर बीच में। असल में देखिए, लोगों को दीन का पता नहीं है ना, दीन मजहब का पता नहीं है, कुरान का पता नहीं है, अहादीस का पता नहीं है उनको, तो उस वजह से लाइलम है, वो जाहिल है, तो उस वजह से ऐसी बात कभी कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे वो नेगेटिव सोचते हैं। और जादू जो है, ऐसे मनफी असरात जो है, वो तो उल्टा काम करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं। और समदा ऐसे एक ताकत है जो कि अभी तक किसी एक शख्स को एक जरे बराबर कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। नहीं सर, हो ही नहीं सकता सर, कभी भी नहीं हो सकता जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे जो है ना, जितने भी यहाँ के तकरीबन 16-17 करोड़ आवाम है हमें सुन रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों लोगों ने समदा से फायदा उठाए हैं। तो कोई भी शख्स, ये अभी तक कोई भी शख्स ने, किसी ने भी नहीं कहा कि इसने कोई नेगेटिव काम किए या नेगेटिव कुछ ऐसे हुआ। कुछ ऐसा होता है जो कि जेलस लोग होते हैं, वो फैलाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को नेगेटिव नहीं कर सका। आपने खुद देखा था पीसी होटल लाहौर में सर, मैंने हमारी 300 बंदों की क्लास थी, 300 बंदों में जिस वक्त आपने दुआ फरमाई, उसके बाद किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं गई। मेरे हम तो ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल फ्रेश है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैरान हो गया सर, उस टाइम मुझे उधर भी रोना आ गया था कि अल्लाह, ये जो मेरी 54 साल की जिंदगी गुजर गई है, तो मुझे डॉक्टर साहब से क्यों नहीं मिला है। बिल्कुल। आपको पता है कि नेगेटिविटी जो लोगों में होती है, जो लोग नेगेटिव होते हैं मिसाल के तौर पे, वो भी हम कामयाब नहीं होता है। आपको पता है, आपने खुद फरमाया था कि बाहर लोग खड़े थे, जी बिल्कुल, लोग खड़े थे जो प्रोफेशनल शैतानी ताकतों वाले होते हैं भी। हाँ, जो प्रोफेशनल, इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी जिंदगी है, हमारे बच्चे, हमारे सारा कुछ हम आप पे कुर्बान करते हैं सर। बिल्कुल। और आपने देख लिया कि कामयाब नहीं हुआ, अल्लाह का करम हुआ। अगर कोई और उसकी बातों में आ जाता तो अब आप हमारे साथ नहीं होते। तो आप पर अल्लाह का खास करम है, हम पे अल्लाह का रहम है। और अगर मैंने पीर अवैस अली शाह साहब की अपना बच्ची का इलाज किया, अल्लाह का शुक्र है, उनको ना जी दौरे पड़ते थे, अब रुपए में 85% बेहतर हो गई है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। बहुत अल्लाह के वली आए थे। और मैं तो फारसी ज्यादा नहीं समझता हूँ, मैं पुश्तो स्पीकिंग हूँ। बहरहाल यह है कि वो फारसी में ना जी शेर पढ़े गए थे, फारसी में नाथवानी हो रही थी। तो वहां पर भी कई लोगों ने आपके मुतालिक मेरे से पूछा, और जब मैंने उनको बताया तो सब ने ना जी, जितने भी अल्लाह के वली बैठे थे, सब ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम डॉक्टर अब्दुल समद की ज़ियारत के लिए जरूर हाजिर होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे इस दफा हम। बिल्कुल। और मेरे घर वाले सारे तैयार है सर आपसे ना जी, ये 1 to 4 और पूरा सिस्टम को ना जी वो करने बिल्कुल इंशाल्लाह इस दफा तमाम इंशाल्लाह तमाम क्लासेस लेंगे। तो हमारे पास इधर मदरसा है, उसमें 40 बच्चे हैं, मेरी बेटी पढ़ाती है, आलमा फाजला है। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिश है कि कई बच्चे बहुत सुस्त हैं या किसी का दिमाग नहीं चलता है, छोटे छोटे बच्चे, 11 साल से कम उम्र के बच्चे हमारे पास। बिल्कुल, वो कर सकती है, उनका इलाज कर सकती है। तो वो कहती है कि मैं ना जी डॉक्टर साहब से ये अपना सीख लूं, और मैं बच्चों का ना, जो बच्चे सुस्त हैं पढ़ाई में, तो मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो मेरा सलाम सबको कहना, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे आने वाले। आप कब आ रहे हैं लाहौर में जी? लाहौर में इंशाल्लाह मैं ये 10 तारीख को आऊंगा, इस हफ्ते को नहीं, अगले हफ्ते को। अगले हफ्ते वो बिल्कुल, इस हफ्ते को। लाहौर वालों को सिर्फ 3 दिन देते हैं, ये तो बहुत थोड़े हैं सर, इसको 5-6 दिन करें जी।
अभी 3 दिन, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा काम होता है, फिर टीवी की शो होती है और फिर लाहौर इस्लामाबाद की होती है, पिंडी की होती है, तो अभी भी मैं बड़े लाहौर में ना जी काफी लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करनी हम सब ने कि 3 दिन से बढ़ाया जाए, तो मैंने कहा जी बिल्कुल हम इंशाल्लाह उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, सारे करेंगे। और मेरा एक काफिला तैयार हुआ है सर, लेडीज भी है, बच्चे भी बीच में है, 12-12 साल 15 साल के, तो सारे ना जी आपके पास सेमिनार अटेंड करना। इंशाल्लाह 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 देखेंगे, अल्लाह बेहतर करेंगे, जैसे इंशाल्लाह आप लोग चाहें तो ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। तो हजरत मैंने जो हमारे यहाँ पर हक टीवी नहीं आता केबल के ऊपर, हमने यहाँ इंतजाम किया है, डिश एंटीना लगाया आपने, और बाकायदा एक बेहतरीन इंतजाम किया स्क्रीन वगैरह का, ये अच्छा कृष्णा जी के हक टीवी लोग देखें। अब भी आते हैं डिश सबा केबल है सर, वो हक टीवी उन्होंने बंद किया हुआ है सर, सबा केबल, सबा केबल वाले, ठीक है, तो रिक्वेस्ट भी की है। हाँ वाकई बहुत से लोगों का वो है, शिकायत है, तो बस इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह सुन लिए लोगों ने तो केबल लगाएंगे। हमने 27,000 का डिश एंटीना लेके, तो सिर्फ ये है कि हक टीवी को देखने के लिए जी अपना, इसलिए कोई इस्लामी चैनल है और दीन और दुनिया की, कुरान की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें सुनाते हैं, तो हमें ना बहुत रूहानी फैज़ मिलता है उस चैनल। बहुत सी प्रोग्राम हमारे ये जो हक टीवी के प्रोग्राम में इतनी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, तो लोग जो है ना इतना ज़्यादा वो नहीं देखते हैं, तो उस वजह से लोग मशीनी मसनूई हो गए, दुनिया बहुत से चीज़ों का दीन के हवाले से इतना उनको बहुत सादा लगते हैं चीज़ों को, तो आजकल तो मॉडर्न मशीनी दुनिया है, तो उससे वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है उस चीज़ों से। तो इंशाल्लाह अल्लाह आहिस्ता ये सारा कुछ, यहाँ पर बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं सर, हम देखते हैं सर, अब तो हमारा अपना एंटीना है, मेरे पास काफी इधर मेहमान आके बैठ जाते हैं देखने के लिए। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका मतलब है आप लोग हर सुबह और शाम को प्रोग्राम देखते हैं? और शाम को सर, रात को 1 से 2 बजे तक, और बहुत ही ज्यादा लुत्फ आता है सर, और हम सब जब आपकी जितने लोग ज़ियारत करते हो कहते हैं हम ठीक हो गए जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे, अपने जैसे हमें भी बना दे। अल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें अता की माशाल्लाह। आप कब से इस रास्ते में है, इस रूहानियत के रास्ते में? माशाल्लाह हमसे भी पहले आप, और आपकी इतनी उम्र है, आपकी उम्र कितने है? मेरी सर 53 खत्म हो गए, 54 शुरू हो गया सर। अच्छा, तो आप देखें हमसे माशाल्लाह आपकी उम्र इतने, और आपने सारी ज़िंदगी इसमें गुजारे, तो इंशाल्लाह आप और सब ऐसे हो जाएंगे, और इससे भी ज़्यादा अल्लाह से तवक्को रखता है, अल्लाह से हम ये रखते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा ताकत अता फरमाएं। हजरत एक छोटी सी बात करनी है। जी बिल्कुल। हेलो जी जी बिल्कुल, प्लीज करें। हजरत जब से मैंने ये अपना पीरी फकीरी में आया हूँ, तो मुझे बड़ा शौक था जन्नात को काबू करने का। सही। मैंने जन्नात को भी काबू किया है, मौकलात किया है, कितने चीजें रखी हैं अपने पास। जब से आपसे मुलाकात हुई, ये सारी चीजों को मुझे आजाद करना पड़ा, और इनके ऊपर तरस आया कि ये तो अल्लाह की मखलूक है और इनको आजाद ही रहना चाहिए। क्या बात है, क्या जबरदस्त बात कही आपने। और हम अशरफुल मखलूकात है, उनसे क्या काम लेंगे, हम खुद ही काम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो आपने फरमाया था कि हम फरिश्तों से भी अफजल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फरिश्तों से अफजल है हम। आप फरिश्तों से बन के बैठा हूँ कि मैं तो सबसे अफजल हूँ और बहुत पावरफुल बंदा हूँ मैं। बिल्कुल, हम अशरफुल मखलूकात है, यानी अबाव है, हर मखलूक से बड़े हैं, ताकतवर हैं। बेशक सर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। जी, बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई और बड़ी ज़बरदस्त। फिर मोहम्मद अनवर ख़ान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त मैसेज आप लोगों को दिया कि उन्होंने बहुत सी चीज़ों के काबू करने की कोशिश की है, और पहले उनके ख़यालात थोड़े से न कभी कभी हो जाते थे, कुछ सेंसिटिव हो जाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और रोज़ाना खिदमतें हो रहे हैं लोगों के 100 के 150 लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह अगर दर्द धूप दूर होते किसी एक शख्स से,
تو یہ بہت بڑی بات بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنی ہمارے گناہیں معاف کریں گے اور کتنے خوش ہوں گے کہ وہ تو سب سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اور یاد رکھنا بندے کا حق معاف بھی نہیں کرتے ہیں. جتنی مرضی چالاکیاں کریں، جتنی مرضی کچھ کریں، عبادات کریں، دعائیں مانگے، نمازیں پڑھ لے، جو مرضی کر لو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ لیتے تو سارے گناہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے حق سے کبھی بھی وہ معاف نہیں کر سکتے جب تک بندے نے آپ کو معاف نہیں کیا، اسی بندے کو اور اپنی غلطی کو قبول نہیں کیا ان کے سامنے کہ میں نے یہ کیا ہے اور مجھے معاف کرو. تو اس وقت تک جب تک بندے نے معاف نہیں کیا، اللہ کتنی مہربان ہے، کتنی بڑی طاقت ہے. یہ دیکھیں ہماری طرح حقیر سوچ، ہمارے بڑے کبھی حقیر سوچ ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں ہم کیوں معاف کریں، ہم کیوں ایسا کر لیں. اللہ کتنے طاقتور، مہربان، رحیم، کریم، ستار، غفار ہیں.